गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट टुडेस हाँ क्लास। तो आज की क्लास हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और एज यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ NCERT वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वी आर फोकसिंग ऑन द बुक NCERT वाला. So in this book NCERT wala, we are on the chapter number 2. In the chapter number 1, we had discussed about the emergence of societies. And after understanding a lot about the emergence of societies, if you remember, then the chapter emergence of society was majorly about the Mesopotamian civilization. See, we tried to explore the various aspects of the Mesopotamian civilization. And now, in this chapter, we need to focus majorly on the Roman Empire and a bit about the Mongolian Empire. So the chapter number 2 is majorly about the Roman Empire and I will say a bit about the Mongolian Empire. So, as you can see, many of you have already joined me in this class. I can see Lucky, Karuna, Biswajit, Varsha is there, Srishti is there, Ayan, and Divi. And Neetu, Alali, I can see Kavya. So, Web is also there, Shivan is also there. All right. Bhumi, Sneha. Good evening to you all. Divya, Trinath, Khushi, Soumya, Lifza, Monica, Vijay, Asan, Vipul, Jyoti, Nidhi, Shifa, Radhika, Anita, Yadav ji, Ekta, Ayush, Abhishek, Prince, Kumkum, Ibrahim, Vipul, Samiksha, Nisha, Rakhi, Iran, Anisha, Dipanshi, Purvi, Atriya. All right, since you all have joined, it's time to start today's class. चलिए फिर आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं. The chapter number 1, emergence of society, has already been covered, and if you haven't joined this Telegram channel, it is right time to join. You can scan this Telegram QR code, and you can join my Telegram channel, or you can also search at the rate Devendra Sir only as UPSC, and you will get through the Telegram channel. You can also join that channel over there. So the chapter number 1, emergence of societies, has been covered, and we are going through the chapter number 2, emergence of empires. The introduction of emergence of empires has already been covered. World history में chapter number 2 we are exploring, and in this chapter number 2 we are exploring two elements, and the name of the chapter is emergence of empire. Let me explain. There are two basic things we need to discuss here. One, Roman Empire. Two, Mongolian Empire. Roman Empire and Mongolian Empire. Only two things will be discussed in this chapter. Introduction has already been covered. इंट्रोडक्शन पर हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है. जो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था, मैं उसका ही एक ओवरव्यू आपको यहां पर दे देता हूं. ठीक है. इंट्रोडक्शन में जो हमने कवर किया था उसको मैं यहां पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, थोड़ा सा आइडिया मिले और बात बन जाए. हाँ, चलो. इमर्जेंस ऑफ एम्पायर में रोमन एम्पायर देखेंगे, मंगोलियन एम्पायर देखेंगे, बस इतना ही पढ़ना है. अलेक्जेंडर्स एम्पायर नहीं है. वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके जो चैप्टर में है सिर्फ वही पढ़ाऊंगा. दुनिया भर की बातें हैं, न जाने कितने एम्पायर्स आए और गए, सारा नहीं पढ़ना. अलेक्जेंडर्स एम्पायर आपने पढ़ा है किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है आपने. यहां पर समझो बात को, यहां पर बात को समझो. हम लोग देख रहे हैं टॉपिक इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स.
ये हमारा टॉपिक है। इमर्जेंस ऑफ एम्पायर नाम के टॉपिक में वी आर एक्सप्लोरिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पर हमारी जो बात हुई थी मैं उसे ही ब्रीफली एक्सप्लोर कर रहा हूं। हैव अ लुक। फोर 4000 BCE, लेट्स कंसीडर इट 0। यहां पर हुआ है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट डे 1। हमारे डेटिंग सिस्टम में क्राइस्ट के बर्थ को पहला दिन माना जाता है। जैसे आज जो भी तारीख है 2025 की, आज इतना दिन हो चुका है क्राइस्ट के जन्म को। समझ गए? नाउ 4000 BCE टू 4000 BCE टू 539 BCE। 4000 BCE टू 539। फोर 4000 BCE टू 539 BCE यहां ले लो। 539 BCE। ये पूरा टाइम फ्रेम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बताया जाता है। जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ही विद इन इसी टाइम फ्रेम में, आई विल से अलग से नहीं, इसी टाइम फ्रेम में आप देखो यहां पर शुरू होती है 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी और यहां पर आप आ जाओ 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी 14th सेंचुरी तो 6th सेंचुरी का जो समय है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ही टाइम फ्रेम में, ये जो टाइम पीरियड है ये था असीरियन किंगडम का या असीरियन एम्पायर मान लो। इस टाइम फ्रेम को असीरियन एम्पायर मान लो। 539 BCE में मैं आपको बताता हूं। अब आपके मन में होगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक शहर के कब्जे के साथ खत्म हो गई। एक शहर हुआ करता था सदर्न मेसोपोटामिया में जिसको कहा जाता था बेबीलोन। बेबीलोन के ऊपर कब्जा किया गया था पर्शियंस के द्वारा यानी कि ईरानियंस के द्वारा इन 539 BCE। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंडेड। दिस सिविलाइजेशन एंडेड with the fall of Babylon. With the fall of Babylon. बेबीलोन एक शहर का नाम है बेटा, जो कि आपको मेसोपोटामिया में मिलेगा। तो बेबीलोन एक बहुत ही खास शहर था जिसके कोलैप्स के बाद हमने ये मान लिया 539 BCE में कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अब बेबीलोन का फॉल कैसे हुआ? ये शहर किसने कब्जाया? पर्शियन इन्वेडेड। पर्शियन से हमारा क्या मतलब है? पर्शियन से हमारा मतलब ईरानियन से है। इन्वेडेड and captured this city and captured this city। बेबीलोन जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बहुत ही खास सिटी मानी गई, ठीक है, खास सिटी मानी गई। इसके कब्जे के साथ ही ये मान लिया गया कि ये शहर कोलैप्स कर गया या ये पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई। अब 539 BCE में जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो इनके कोलैप्स के साथ ही देखो यहां पर 550 से 530 के बीच में पर्शियन एम्पायर रहा। 550 से 530 के बीच में पर्शियन एम्पायर रहा।
550 BCE, 550 BCE से आप आ जाओ 330 BCE पे, 330 BCE, 330 BCE। मोहम्मद साहिल कहते हैं स्पीड बढ़ाइए सर, आप इनको बता दीजिए, बढ़ा दूं? मोहम्मद साहिल को आप लोग थोड़ा बता दीजिए स्पीड बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं। 330 BCE में बेटा क्रॉस कर जाएगा, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से पता नहीं चलेगा, तुम्हारे दिमाग को छेदते हुए बाहर निकल जाएगा, स्पीड बढ़ा दूंगा, शांति से पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 550 BCE से 330 BCE के बीच में यहां पे रहा पर्शियन एम्पायर। 550 BCE से 330 BCE के बीच में यहां पर रहा पर्शियन एम्पायर। और मैं आपको बता देता हूं कि यही पर्शियन एम्पायर है जिसने बेबीलोन के ऊपर हमला किया था, और ये वही पर्शियन एम्पायर है जिसने बेबीलोन सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया था। और बेबीलोन सिटी के ऊपर जब इन्होंने कब्जा किया था तो मान लिया गया कि, ठीक है, कि यहां पर मेसोपोटामियन एम्पायर का अंत हो गया। अब पर्शियन एम्पायर का अंत कैसे हुआ? पर्शियन एम्पायर को खत्म करने वाला माना जाता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का एम्पायर बहुत लंबा नहीं था, 336 से 323 बीसीई के बीच में ये रहे थे, 336 से 323 बीसीई के बीच में। थ्री 36 से 323। ये अलेक्जेंडर का एम्पायर था। पर्शियन एम्पायर को किसने खत्म किया? पर्शियन एम्पायर को खत्म करने का काम अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर ने लास्ट, ठीक है, ठीक है, जो लास्ट एम्पायर था उसको कोलैप्स करने का काम इन्होंने किया। ठीक है, नाउ ये तो देखो हो गया तीन एम्पायर्स का जिक्र, मेसोपोटामियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर्स एम्पायर। अब यहां पर देखो बेटा 27 बीसीई में आता है रोमन एम्पायर, 27 बीसीई में रोमन एम्पायर आता है। ट्वेंटी सेवन बीसीई से 1453 बीसीई, 27 बीसीई से 1453 बीसीई, यहां पर आया बेटा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मेजरली जो हम बातचीत करेंगे वो रोमन एम्पायर के बारे में ही करेंगे। विल अंडरस्टैंड मेजरली अबाउट रोमन एम्पायर टुडे, ठीक है। यहां पर 27 बीसीई से रोमन एम्पायर की शुरुआत हो जाएगी। वी कैन सी 1206 से 1368, 1206 टू
ये है मंगोलियन एम्पायर। ये है मंगोलियन एम्पायर। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम ग्राफ। इस चैप्टर में हम केवल दो ही बातों पे चर्चा करेंगे, एक तो रोमन एम्पायर के बारे में और थोड़ा बहुत मंगोलियन एम्पायर के बारे में। बाकी ये कहानी बस इतना, जितना लिखा है उतना जान लो। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी थोड़ी बहुत बात हो गई थी। पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर के एम्पायर के बारे में आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। डैरियस का नाम आपने मे भी सुना हो। आपने यहां पर, अच्छा ठीक, सही कह रहे हो बेटा, यहां पर एडी हो जाएगा, दिस विल बी एडी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 15 जो है ये हो जाएगा एडी। इसको बीसीई मत रखना बेटा, इसको एडी रखना, 1453 एडी रखना। ऑलराइट, और ये सब भी एडी में ही रहेगा। 1206 एडी, 1368 एडी। चल ठीक है, अब ये जो टाइम फ्रेम लिखा हुआ है इसको चुपचाप नोट डाउन कर लो। अगर किसी का दिमाग इतना तेज है कि वो इसको पचा सकता है तो इसको पचा लो, और अगर आप नहीं पचा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लिख के छोड़ दो। आपका दिमाग कभी तेज हो जाएगा, अपनी नोट्स को दोबारा उठा के पलटिएगा, आपको सब समझ में आएगा। आई डोंट बिलीव कि आपका दिमाग अभी इतना हिस्ट्री को लेकर या इसकी क्रोनोलॉजी को लेकर इतना अभी वाइडन हुआ है कि आप इन सब चीजों को समझ पाओ। खैर, अगर आप इसको समझ पाए तो ठीक है, अगर आप नहीं भी समझ पाए तो भी कोई बात नहीं, लिख लो एटलीस्ट नोट्स में। आई बिलीव कि जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री और पढ़ लोगे, थोड़ा सा एडवांस वगैरह भी पढ़ लोगे, तो फिर आपका दिमाग थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और फिर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अभी बस लिख लो, इंट्रोडक्शन इज डन। यही बात मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाई थी, यही बात मैंने यहां पर इस टाइमलाइन में मेंशन कर दी है। ऑलराइट, नाउ इस पूरी टाइमलाइन को बताने का जो एक मेजर पर्पस था वो ये था कि मैं आपको केवल दो एम्पायर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, एक होगा रोमन एम्पायर और दूसरा होगा मंगोलियन एम्पायर। केवल दो ही एम्पायर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, यही दो एम्पायर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं या बताने वाला हूं। कर सकते हो बेटा, आप इसको जो है पहले रख सकते हो, कोई बात नहीं है। 1368 को आगे कर लो, या मैं कहूंगा इसको ही एक्सपेंड कर लो, जस्ट एक्सपेंड इट। आप उसको आगे करने की बजाय चाहो तो इसी को एक्सपेंड कर लो, आपका दोनों काम हो जाएगा। उसको आगे कैसे करोगे, इसको ही एक्सपेंड कर लो, इसी टाइमलाइन को एक्सपेंड कर लो। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो ठीक है, यहां पर आप कर लो अपना 1453 एडी। अब सही है, अभी क्लियर है? ठीक है, हाँ हाँ चलो, उसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया। मैंने वो जो टाइमलाइन है ना, उसी टाइमलाइन को एक्सपेंड कर दिया, तो दोनों का काम हो गया, दोनों का ही काम हो गया। तो ये तो देखो दो एम्पायर्स हैं जिनके बारे में हमारी बातचीत होगी। इज इट डन? इज इट डन? तो आज हम सब लोग सबसे पहले रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। कल के सेशन में हो सकता है मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा मंगोलियन एम्पायर के बारे में बता दूं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। ईशा पूछते हैं एडी का मतलब क्या है, कोई चैट बॉक्स में ईसा को एडी का मतलब बताइए। समवन प्लीज टेल ईशा द मीनिंग ऑफ एडी। समझ गए, क्या बात है। विजय भी समझ गए, आस्था भी समझ गई, अजय भी समझ गए, महक भी, महक का नहीं, शिफा, खुशी, प्रिंस, शिवी, सभी लोग यहां पर समझ गए हैं। ठीक है, मदन भी समझ गए हैं, कुमकुम, निकिता, एनोडोमिनी, क्या बात है, देखो बच्चे बता रहे हैं एनोडोमिनी। Introduction is done here. Let's move on to the first topic, and that is Roman Empire.
हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अबाउट रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर, रोमन इटली, रोमन ईरान, यहां से शुरुआत होती है हमारे पहले टॉपिक की। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, 27 BCE टू 1453 AD। ये पूरा टाइम फ्रेम रोमन एम्पायर का है। सबसे पहले तो आप एक मैप देखिए। रोमन एम्पायर, हैव अ लुक ऑफ दिस मैप। If you can see, try to have a look on this map, or you can see another map as well. इन मैप्स को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। दिस इज अ बिट क्लियर मैप। ये रोमन एम्पायर है। रोमन एम्पायर के इस मैप को ध्यान से देखिए। जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस मैप। मैं चाहता हूं बस आप ध्यान से इस मैप को देखिए, और जब आप इस मैप को देखते हैं तो आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो ये मेडिटेरेनियन सी है, मतलब ये पूरा एम्पायर मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर फैला हुआ था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नॉर्थ में ये यूरोप को कवर करता था, साउथ में ये नॉर्थ अफ्रीका कवर करता था, नॉर्थ अफ्रीका में जो इजिप्ट का एरिया है वो भी रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो ये यूरोप कवर करता था, अफ्रीका कवर करता था, और यहां पर जो आज का एशिया में टर्की है, टर्की को पहले एशिया माइनर नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, टर्की, टर्की। ठीक है। ज्योति कहती हैं सर वाई यू आर नॉट लिसनिंग, लेटर्स आर नॉट विजिबल। बेटा अगर लेटर्स विजिबल नहीं होते तो बहुत सारे बच्चे ये बात बोल रहे होते। 1000 बच्चों में कोई एक बच्चा अपने नेटवर्क का इशू लेकर चैट बॉक्स में स्पैम करेगा, या फिर वो अपनी डिवाइस की प्रॉब्लम यहां पर पोर्ट्रे करेगा, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। अगर कोई इशू एक्चुअली में सभी लोगों के लिए होगा तो उस पर सारे बच्चे बोलना शुरू करेंगे। वॉइस लो आ रही होगी, सारे बच्चे बोलेंगे। लेटर्स विजिबल नहीं होंगे, सारे बच्चे बोलेंगे। जब किसी चीज को सारे बच्चे बोलना शुरू करेंगे तब जाकर मैं उस चीज को एंटरटेन करूंगा। अगर कोई एक बच्चा बोल रहा है किसी एक चीज को तो आई विल कंसीडर कि ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं उसे एंटरटेन बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है। संजय बेटा दिमाग खोलो अपना, थोड़ा अपनी बुद्धि बंद मत करो, दिमाग का ढक्कन खोल के बैठो, समझ में आएगा। ठीक है, अपने दिमाग का ढक्कन खोलो, यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बंद करके रखियो। ठीक है। इस मैप को दिखाने का कुछ पर्पस है। इस मैप को दिखाने का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना ही है कि ये एक ऐसा एम्पायर था जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैला हुआ था। ये एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैला हुआ था, यूरोप, टर्की, अफ्रीका। मतलब ये 3 एम्पायर्स पर फैला हुआ एम्पायर था।
आप इसका एरिया देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये आज का पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ये जो यूरोप के देश हैं उन सबको कवर करता था। ये इन सबको कवर करता था। ठीक है। नाउ इस पूरे एम्पायर का जो सेंटर था वो यहां रोम में था। रोम क्या है बेटा? रोम इटली की कैपिटल हुआ करती थी। रोम क्या है? रोम हुआ करती थी। रोम आज जो है ना वो कहां पर है? ये आज है इटली में। आज का जो यूरोप का देश है इटली, वहां पर हुआ करता था रोम। और रोम जो यहां पर इटली की कैपिटल है, यहीं से इस पूरे एम्पायर को चलाया जाता था। क्योंकि रोम से ही इस पूरे एम्पायर को चलाया जाता था, इसीलिए इस एम्पायर को रोमन एम्पायर कहा जाता था। रोमन एम्पायर को रोमन एम्पायर क्यों बुलाया जाता था पता चला? क्योंकि ये पूरा एम्पायर, ठीक है, ये और जो पूरा एम्पायर है वो रोम से रन किया जाता था। दैट्स वाई हम इसे रोमन एम्पायर बुलाते हैं। समझ गए बात को? रोमन एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर था जो मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर फैला हुआ था। बहुत बड़ा एरिया इनके पास हुआ करता था। ये हमारी हिस्ट्री के एम्पायर्स में कुछ बहुत बड़े एम्पायर्स में काउंट किया जाता है, जो बहुत लंबे समय तक, लगभग 1500 साल तक सरवाइव कर पाया। अब ये 1500 साल तक जब सरवाइव कर पाया तो ये कैसे कर पाया, किस तरीके से कर पाया, ये सारी बातें जानने और समझने लायक हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कहानी रोम की। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द स्टोरी ऑफ रोम। इस मैप में आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फर्क नहीं पड़ता। सर रोमन एम्पायर की कैपिटल रोम थी, बिल्कुल जानवी आपने बिल्कुल सही कहा। रोम लाइक हेडक्वार्टर, रोम लाइक कैपिटल, रोम इनका कैपिटल हुआ करता था, इसीलिए इसे रोमन एम्पायर कहा जाता था। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप लोगों ने शेक्सपियर का एक प्ले जिसका टाइटल है जूलियस सीजर, उसे पढ़ा है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा हुआ है जिसका टाइटल है जूलियस सीजर? प्लीज मुझे बताइए। आर डेट्स इंपॉर्टेंट? नहीं भीम बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है डेट्स, बस आप उनको एक बार देख लो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जूलियस सीजर पढ़ी है? नो नो नो, हाउ कम? मैंने पढ़ी है। ओके, कुछ लोगों ने पढ़ी है, ज्यादातर लोगों ने जूलियस सीजर नहीं पढ़ी है। ऑल राइट, ऑल राइट। अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ी होती, शेक्सपियर का एक प्ले है, एक नाटक है, तो आपको यह बात समझने में काफी आसानी होती। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन यू अ स्टोरी। पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं और उस कहानी को सुना देने के बाद आपको थोड़ी सी जो बात है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, रोम का डिक्टेटर हिमांशु कहते हैं। हाँ बेटा, समहाउ ही वाज अ डिक्टेटर ऑफ रोम। रोमन एम्पायर के बनने के जस्ट पहले की कहानी है, जूलियस सीजर की कहानी। जूलियस सीजर की कहानी तक हम कैसे पहुंचे, आइए मैं बताता हूं। चलो एक कहानी सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से मेरी इस कहानी को सुनना। अगर आप मेरी इस कहानी को ध्यान से सुन पाए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट ट्राई टू। पोएट हैं क्या? शेक्सपियर का नाम भी नहीं सुना है शिवांश आपने? मतलब 12th पास करके आए हो ना आप लोग? क्या आप में कोई ऐसा भी है क्या जो 10th में है, 8th में है, आपने शेक्सपियर का नाम भी कभी नहीं सुना है? मतलब इसलिए कहते हैं थोड़ा सा एकेडमिक्स जरूरी होता है, थोड़ा पढ़ लिख कर आओ तो चीजें आसान हो जाती हैं। रोम और रोमानिया अलग अलग है, बिल्कुल शिवांश, रोम और रोमानिया वैसे अलग है जैसे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग। ठीक है। संकी ने शेक्सपियर का नाम ही नहीं सुना है। स्क्रीन ब्लर नहीं कर रही बेटा, इमेज ही वैसी है, मत परेशान हो। अरे वैसे भी सुना होता है शेक्सपियर का नाम, इसमें साइंस और आर्ट कुछ नहीं है। चलो, नहीं सुना है तो नहीं सुना है। अब आ ही गए हो यूपीएससी की तैयारी करने, क्या किया जाए। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो नहीं सुना है, अभी मैं क्या करूं?
अभी नहीं सुना है तो नहीं सुना है, अब उसका कुछ कर तो सकते नहीं है। रोमन एम्पायर 117 एडी की कहानी। कहानी सुनो थोड़ा ध्यान से। यह है रोम, यह है रोम। लगभग आज से 750 साल पहले 750 बीसीई में रोम के आसपास बहुत सारी ट्राइब्स रहा करती थी। केवल इसे कहानी की तरह सुनो, जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक लाइक अ स्टोरी। 750 बीसीई में यहां पर बहुत सारी ट्राइब्स रहा करती थी। ये सारी ट्राइब्स इकट्ठा होती हैं और ये ट्राइब्स इकट्ठा होकर बनाती हैं एक किंगडम, जिसको आप रोम के चारों ओर बनता हुआ देखते हैं। वो था एक रोमन किंगडम। रोमन किंगडम, रोमन किंगडम में मोनार्की यानी कि कोई राजा नहीं था। रोमन किंगडम में रिपब्लिकन सिस्टम ऑप्ट किया गया। रोमन किंगडम रोमन रिपब्लिक बना। यह एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड हेड्स। रोम जब यहां पर एक छोटा सा राज्य बना, इटली में जो आज का रोम है उसके आसपास एक छोटा सा राज्य बना जिसको रोमन रिपब्लिक कहा गया। रोमन रिपब्लिक इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर दो लोगों को रूल करने के लिए चुना जाता था। एक साल के लिए एक कॉन्सुल चुना जाता था। ऐसा कोई नहीं था जो पूरी पावर अपने आप में ग्रैब कर ले। ये जो दो कॉन्सुल चुने जाते थे, ये एक साल के लिए पूरा रोमन किंगडम चलाते थे और इनकी मदद के लिए एक सीनेट हुआ करता था जिसमें लोगों को चुनकर अलग अलग जगहों से लोग भेजा करते थे। एक तरीके की डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही थी रोमन किंगडम में। बहुत ही छोटू सा रोमन किंगडम हुआ करता था जो 750 बीसीई के आसपास यहां पर डेवलप हुआ। रोमन किंगडम। आइए समझते हैं रोमन किंगडम के रोमन किंगडम से रोमन एम्पायर बनने की कहानी। रोमन किंगडम से रोमन एम्पायर बनने की कहानी। इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं यहां पर आइए समझिए। अराउंड 750 बीसीई रोमन किंगडम इवॉल्व्ड। एक छोटा सा राज्य रोम के आसपास बना जिसको रोमन किंगडम कहा गया। थोड़े ही समय में 500 बीसीई के आसपास यह रोमन रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। यह रोमन रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। रोमन रिपब्लिक का मतलब था कि यहां पर कोई राजा नहीं होगा बल्कि वो रूल करेगा जो चुनकर जाएगा। रोमन रिपब्लिक में दो लोग रूल किया करते थे। एक थी 2 मेंबर काउंसिल। टू मेंबर कौंसुल। कौंसुल में केवल 2 मेंबर होते थे और दोनों मेंबर्स के पास अब लिखना है जो कुछ भी मैं यहां बोर्ड पर लिखता हूं वो आपने लिखना है। 2 मेंबर कौंसुल हुआ करती थी और यहां पर एक होती थी सीनेट और ये होते थे इलेक्टेड मेंबर्स। सीनेट में कौन होते थे? इलेक्टेड मेंबर्स। रोमन रिपब्लिक इसी तरीके से काम करता था। रोमन रिपब्लिक निकिता। चलो मैं आप सभी लोगों को एकदम क्लियरली एक बात बता देता हूं। जो कुछ भी मैं यहां बोर्ड पर लिखूंगा वो आपका नोट्स है। कहानी मैं आपको चाहे जितनी सुनाऊं, बातें मैं आपको चाहे जितनी बताऊं, बोर्ड पर मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो मैं चाहता हूं कि आप लिखें। समझ गए बात को? अभी से हमेशा के लिए बता दे रहा हूं, जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो आपने लिखना है।
दो मेंबर की जो काउंसिल होती थी वो रूल किया करती थी। हमने क्या देखा कि इस काउंसिल सिस्टम में रोमन एम्पायर बहुत ही तेजी से एक्सपेंड किया। इन काउंसिल सिस्टम का मतलब क्या है कि दो काउंसिल होते थे जो एक साल के लिए चुने जाते थे, और एक काउंसिल जो होता था अगर वो कोई बात कह रहा है तो दूसरा उसको काउंसिल से ही बना हुआ है तो वो उसको काउंटर कर सकते थे। इन काउंसिल सिस्टम रोमन किंगडम एक्सपेंडेड रोमन किंगडम एक्सपेंडेड कैप्चर्ड लार्जर एरिया और उसने एक बहुत बड़ा एरिया अपने आसपास कब्जा लिया। ठीक है, उसने एक बहुत बड़ा एरिया अपने आसपास कब्जा लिया। बेटा लगभग 50 बीसीई में जूलियस सीजर डोमिनेंस में आए। जूलियस सीजर डोमिनेटिंग पोजीशन अवेल करते हैं। ठीक है, अराउंड 50 बीसीई जूलियस सीजर डोमिनेटेड एज मिलिट्री कमांडर मिलिट्री कमांडर के तौर पर जूलियस सीजर बहुत पॉपुलर हो गया। जूलियस सीजर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, 50 बीसीई के आसपास जब उसने कब्जा किया फ्रांस पर, जिसे उस समय घौल कहा जाता था, तो उसकी पॉपुलैरिटी पीक पर गई। जैसे हम लोग आज शैम मॉनिक शॉ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उनके ऊपर तो हमने मूवी भी बना दी सैम मानिक शॉ के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही मिलिट्री कमांडर्स को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा 50 बीसी के आसपास जूलियस सीजर बड़े डोमिनेट कर गए एंड सून ही बिकेम अ कॉन्सुल। जल्दी ही ये कॉन्सुल बन गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल दो ही कॉन्सुल हुआ करते थे। जूलियस सीजर जब कॉन्सुल बने तो दूसरा वाला कॉन्सुल मर गया, केवल एक ही कॉन्सुल बचे, जूलियस सीजर। अब जब जूलियस सीजर केवल एक ही कॉन्सुल बचे तो लगभग सारी पावर उन्हीं के पास आ गई, क्योंकि उन्हें काउंटर करने वाला दूसरा कॉन्सुल था नहीं। उन्हें कहा गया कि आप राजा ही बन जाइए, आपको कोरोनेट कर देते हैं, आपको राजा की तरह गद्दी पे बिठा देते हैं। ठीक है, आपको राजा की तरह गद्दी पे बिठा देते हैं, आप गद्दी पर आ जाइए। ही वॉज ऑफर्ड, जूलियस सीजर को कहा गया कि आप राजा बन जाइए, ऑफर्ड थ्रोन। लेकिन उन्होंने राजा बनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो राजा नहीं बनूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जो यहां पर जूलियस सीजर की बढ़ती हुई पावर थी ना, इससे जो सीनेट है ना, सीनेट के लोगों को बड़ा चुभन होने लगी। सीनेट चुने हुए लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, कौंसिल चूज किया जाता था। हां, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है काजल, बस ऐसे जानते रहो। ठीक है, कौंसिल के लोगों को चुभन होने लगी जूलियस सीजर से। एक प्लान बनाया गया जूलियस सीजर को मार देने का। जूलियस सीजर को मार देने का ये जो प्लान है, इसे शेक्सपियर ने अपने प्ले जूलियस सीजर में बहुत अच्छे से डिटेल से नरेट किया है।
अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप जूलियस सीजर नाम का ये प्ले जरूर पढ़िएगा शेक्सपियर का, आप उसे एंजॉय करेंगे। और अब तो आपके पास इसका बैकग्राउंड भी है कि जूलियस सीजर राजा नहीं थे, वो बस काउंसुल थे। और जब वो काउंसुल थे तो उनको बैलेंस आउट करने वाला दूसरा काउंसुल नहीं था, ठीक है। ही वॉज द ओनली कॉन्सुल, ही वॉज द ओनली कॉन्सुल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि उन्होंने थ्रोन देने से डिनाई कर दिया। लेकिन ये जो सीनेटर थे, ये जो कई सारे सीनेट के मेंबर थे, क्योंकि कॉन्सुल हमेशा सीनेटर से एडवाइस लेकर काम किया करते थे। सीनेट का काम क्या था? सीनेट का काम हुआ करता था कॉन्सुल्स को एडवाइस देना। सीनेट के जो मेंबर्स होते थे वो एडवाइस दिया करते थे कॉन्सुल को, और जो डोमिनेटिंग पोजीशन थी इस चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा नाराज रहने लगे। प्लान बनाया गया जूलियस सीजर को मारने का। सीनेट ने एक बैठक बुलाई, जूलियस सीजर को बुलाया गया यह बोलकर कि कुछ जरूरी मुद्दों पर डिस्कशन करना है। और जब जूलियस सीजर उस बैठक में पहुंचे, ये सारे सीनेटर्स जूलियस सीजर को मारने की प्लानिंग करके बैठे थे। जैसे ही वो गए, एक सीनेटर ने आकर उनके ऊपर पीछे से छुरे से हमला किया। उसके बाद बारी बारी से सारे सीनेटर्स उठने लगे और आकर चाकू निकाल निकालकर जूलियस सीजर को मारने लगे। आखिर में जो सीनेटर उठा उसको देखकर जूलियस सीजर चौंक गए, क्योंकि वो सीनेटर उनका बहुत ही खास दोस्त था। नाम था ब्रूटस। ब्रूटस जूलियस सीजर का बहुत खास दोस्त था, बहुत ही भरोसेमंद था। और फिर ब्रूटस उठता है और आखिरी चाकू ब्रूटस जूलियस सीजर के सीने में धंसा देता है। और तब जूलियस सीजर ने मरने से पहले अपने आखिरी शब्द कहे थे, एट ब्रूट टू। ये एक लैटिन शब्द है जो यूरोप में प्रचलित है। एट बुट ब्रूट टू इसका मतलब था, या एट टू ब्रूट का मतलब था, ब्रूटस तुम भी। ये कुछ ऐसे होता है जैसे आपको किसी पर भरोसा ना हो कि ये इंसान मुझे मार सकता है, तो वो मरने से पहले कहते हैं कि ब्रूटस तुम भी। और ये बोलकर एट टू ब्रूट, ये जूलियस सीजर के आखिरी शब्द से, ब्रूटस तुम भी। और उसके बाद सीजर मर जाते हैं, सीजर मर जाते हैं। उसके बाद से आज तक ये जो वर्ड है ना, एट टू ब्रूट, इस वर्ड का इस्तेमाल दोस्ती में दगाबाजी के लिए किया जाता है। जब आपका कोई दोस्त आपको धोखा दे देता है तो आप कहते हैं ब्रूटस तुम भी। कई बार ऐसा होता है कि चार दोस्त आपस में बैठे हैं, दो आपको रोस्ट कर रहे हैं, एक आपका बड़ा ही खास दोस्त है, और अचानक से वो उन दोनों के साथ मिलकर आपको रोस्ट करने लग जाता है, आपकी खिंचाई करने लग जाता है। और तब आप उससे कहते हैं ब्रूटस तुम भी, कि ब्रूटस तुमने भी धोखा दिया। इज इट अ रियल स्टोरी? वनिता कहती है इट इज एब्सोल्युटली अ रियल स्टोरी ऑफ जूलियस सीजर। ठीक है। ब्रूटस को मार दिया गया और ब्रूटस की विल निकाली गई। मैं आपको बता दूं बेटा, इजिप्ट की एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था क्लियोपात्रा। इजिप्ट की उस रानी क्लियोपात्रा के साथ जूलियस सीजर के रोमांटिक रिलेशंस थे, और क्लियोपात्रा से उनका एक बेटा भी था। इजिप्ट की रानी को ऐसा लगा कि उनके बेटे को जूलियस सीजर ने अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया होगा। लेकिन क्या ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जूलियस सीजर की जब विल निकाली गई, यानी कि वसीयत, तो पाया गया कि जूलियस सीजर अपने भतीजे
को अपना सक्सेसर डिक्लेयर करके गए हैं। उनके वो जो भतीजे थे जिनको उन्होंने अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था, उनको रोमन एम्पायर बनाना था। उनके भतीजे का नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस। हमने क्या देखा? किल्ड इन 44 BCE। जूलियस सीजर को 44 BCE में मार दिया गया। ऑगस्टस उनके सक्सेसर थे, जो कि उनके भतीजे थे। ऑगस्टस जो कि उनके भतीजे थे, उनके विल में उन्हें उनका सक्सेसर बताया गया था, लेकिन सीनेटर्स ने ऑगस्टस को गद्दी देने से मना कर दिया। ध्यान दीजिए, अगस्त का महीना इसी राजा ऑगस्टस के नाम पर आया है। जो आप अगस्त महीना देखते हैं ना, वो ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। ऑगस्टस उनके भतीजे जो उनके सक्सेसर थे, इन सीनेटर्स ने उनको गद्दी नहीं दी, और जब इन सीनेटर्स ने उनको गद्दी नहीं दी तब एक सिविल वॉर छिड़ा। ऑगस्टस ने एक सिविल वॉर की शुरुआत की। ऑगस्टस ने अपने चाचा की गद्दी को पाने के लिए एक सिविल वॉर किया, और वो उस सिविल वॉर में जीत गए। जीत जाने के बाद 27 BCE में उन्होंने रोमन एम्पायर को फाउंड किया। 27 BCE रोमन एम्पायर फाउंडेड। फोर्टी 44 BCE में उनके चाचा को मारा गया था, और 27 BCE में लगभग 16-17 सालों के बाद उन्हें फाइनली अपना पूरा एम्पायर मिला, और 27 BCE में रोमन एम्पायर को फाउंड किया गया, और ऑक्टेवियन ऑगस्टस रोमन एम्पायर के पहले राजा बने। ऑगस्टस बिकेम द फर्स्ट किंग। ऑगस्टस बिकेम द फर्स्ट किंग। 27 BCE में रोमन एम्पायर के फाउंड हो जाने के बाद ऑगस्टस पहले राजा बने। मुझे बताइए कि रोमन एम्पायर फाउंड हो चुका है। क्या आपको रोमन एम्पायर का यह सिस्टम समझ में आया? क्या रोमन एम्पायर के फाउंड होने का यह पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू ऑल? रोमन एम्पायर आपको समझ में आया? रोमन एम्पायर कैसे फाउंड किया गया? सिविल वॉर सीनेटर्स के साथ कहते हैं। सिविल वॉर किसके साथ? सिविल वॉर सीनेटर्स के साथ। ये सीनेट के जो मेंबर्स थे ना, जो जूलियस सीजर को मारते हैं, उनके साथ सिविल वॉर होता है। यस सर, यस सर, यस सर, ऑल क्लियर। यस सर, अंडरस्टूड। यस सर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर। यस सर, यस सर, ठीक है। ऑल राइट। सभी लोगों को प्रोबेबली ये समझ में आ गया है। सभी लोगों को समझ में आ गया है। एक दो लोग होंगे जिनका थोड़ा सा दिमाग बंद होगा, बाकी सभी लोगों को समझ में आ गया है। क्लियोपात्रा के साथ क्या हुआ? तुमको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्लियोपात्रा में। जाने दो ना, छोड़ दो उनको, अपनी जिंदगी जीने दो क्लियोपात्रा को। ठीक है, ऑल राइट। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब रोमन एम्पायर की शुरुआत हो चुकी है। रोमन एम्पायर। When Roman Empire was founded, उनके राइवल कौन थे? उनके राइवल कौन थे? राइवल मतलब दुश्मन। उनके राइवल थे
पर्शियंस। पर्शियन एम्पायर। रोमन एम्पायर का राइवल कौन था? पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर में कौन था बेटा? पर्शियन एम्पायर में पार्थियंस का रूल था। पार्थियंस कौन है बेटा? आज का जो ईरान है बेटा, वहां पर एक शहर है, नाम है पार्थिया। ठीक है, ठीक है, उसका नाम है पार्थिया। तो पार्थिया से जो एक एम्पायर बना उसे पार्थियन एम्पायर कहा गया। ये कुछ ऐसे है कि एक बहुत बड़े हिस्से पर यहां पर रोमन एम्पायर हुआ करता था, और रोमन एम्पायर का जो पड़ोसी था ना, वो था पार्थियन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो पड़ोसी था वो था पार्थियन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर और पार्थियन एम्पायर जो थे ना, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। अगर ये था रोमन एम्पायर, अगर ये था रोमन एम्पायर, तो ये था पर्शियन एम्पायर। ये था पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर में किसका रूल था? पार्थियंस का। पार्थियंस को पार्थियंस क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहां पर एक शहर था जिसका नाम था पार्थिया। पार्थिया नाम का एक शहर था, वहां से ये लोग रूल किया करते थे, इसीलिए इनको पार्थियंस कहा जाता था। ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था, इसीलिए हम इनको पर्शियन एम्पायर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ईरान का जो पूरा एरिया है ना, उसे ही हम पर्शियन बुला देते हैं। ठीक है। नाउ आप इसे पार्थियन एम्पायर कह लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इस समय इस एम्पायर को पार्थियन एम्पायर भी बुला सकते हैं, पार्थियन एम्पायर। क्योंकि ईरान का एरिया ही पर्शिया कहा जाता है। हां बेटा, अब ये कुछ ऐसे है कि इंडियन एम्पायर खत्म हो गया, इंडिया नहीं खत्म हो गया ना, इंडिया तो रहेगा। समझ गया ना बेटा? तो हम लोग ईरान को ही पर्शिया बुला देते हैं, तो इसीलिए वहां पर बनने वाले एम्पायर्स को हम लोग पर्शियन एम्पायर कह देते हैं। वो एक एम्पायर हुआ करता था पर्शिया में जो एक्मेनिड एम्पायर था। तो इसके पहले जो खत्म हुआ था वो एक्मेनिड एम्पायर खत्म हुआ था। यहां पर उसी पर्शिया में, यहां पर उसी पर्शिया में ये पार्थियंस का रूल आया। अब इन दोनों की एक दूसरे से चलती थी दुश्मनी। ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी थे। एक और रोमन्स थे, दूसरी ओर पार्थियंस हुआ करते थे। रोमन्स एंड पार्थियंस के इस रिलेशन के ऊपर आपके एनसीईआरटी वाला में एक ब्लॉक दिया हुआ है। मुझे लगता है कि हमें एक दफा उस ब्लॉक को पढ़ना चाहिए। ये वही पार्थियंस है जो इंडिया में आते हैं और इंडो पार्थियन एम्पायर फाउंड करते हैं। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे इस बारे में। बट अभी आपको यह पता चला कि रोमन एम्पायर जब फाउंड हुआ तो उनके राइवल पार्थियंस हुआ करते थे। ठीक है। बाकी नॉर्थ में ऑफकोर्स जर्मन्स भी थे। दिव्या कहती हैं कि जर्मन ट्राइब्स भी तो उनके राइवल थे। ऑफकोर्स जर्मन ट्राइब्स भी उनके राइवल थे। ठीक है। बट अभी आइए देखते हैं कि इनके बारे में जो एक ब्लॉक है, इस बारे में ये जो ब्लॉक है, आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ तब से लेकर अर्ली 7th सेंचुरी तक दो फॉर्मिडेबल एम्पायर यहां पर डेवलप हुए। एक था रोम और दूसरा था ईरान। रोम में आया रोमन एम्पायर, ईरान में आया पार्थियन एम्पायर। ये एम्पायर्स बहुत ही ज्यादा फैले हुए थे। अगर आप ज्योग्राफिकल एरियाज को देखें तो दोनों ज्योग्राफिकली एक दूसरे से काफी ज्यादा नजदीक थे, और ज्योग्राफिकली नजदीक होने की वजह से ये लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा राइवलरी रखते थे। मतलब इनके बीच में राइवलरी थी और कॉन्फ्लिक्ट था। ये दोनों एम्पायर्स केवल यूफ्रेट्स रिवर से ही एक दूसरे से अलग होते थे। यूफ्रेट्स रिवर थी जो इन दोनों एम्पायर को सेपरेट करती थी। ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर आपको यूफ्रेट्स रिवर मिलेगी, यूफ्रेट्स रिवर। तो जो यूफ्रेट्स रिवर है ना, यूफ्रेट्स रिवर ही इन दोनों को अलग करती थी, दोनों एम्पायर्स को। इसीलिए पार्थियंस एंड पर्शियंस आर सेम। बेटा, पर्शिया देश का नाम है, पार्थियंस वहां के लोग हैं जो यहां पर रूल कर रहे हैं। ठीक है। बाद में सेसानियंस भी आए थे। सर व्हाट अबाउट सेसानियंस? पार्थियंस के बाद बेटा सेसानियंस आए थे। ठीक है। और उसके बाद वो राइवल बन गए, क्योंकि देखो पार्थियंस तो थोड़े समय के बाद खत्म हो गए, लेकिन रोमन्स तो बने रहे ना। ठीक है। तो उसके बाद सेसानियंस आ गया। देव कहते हैं सर व्हाट अबाउट सेसानियंस?
क्या वो भी दुश्मन थे? हाँ जी बेटा, सेसेनियंस भी उनके दुश्मन हुआ करते थे जो पार्थियंस के बाद आए। यस सर, आसिम सर ने पढ़ाया था। आई डोंट नो कि आप में से कुछ लोगों ने आसिम सर से पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। एंड आई बिलीव कि जो कह रहे हैं कि आसिम सर ने पढ़ाया था, उन्होंने इस कोर्स में आसिम सर से नहीं पढ़ा है, बल्कि उन सभी लोगों ने किसी YouTube वीडियो में आसिम सर से ये बात पढ़ी होगी। डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी। तो ऐसे कंफ्यूजन मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग जाता है कि आपने पढ़ लिया है, तो फिर मेरा ओरिएंटेशन बदल जाता है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से किसी ने एशियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, और आप में से किसी ने भी आसिम सर से कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है आसिम सर से वहां पर यूट्यूब वगैरह से, वो आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ समझेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। फॉर द सेक ऑफ मी, लेट मी अंडरस्टैंड कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हाँ ठीक है। आई नो आपने नहीं पढ़ा है, कुछ लोगों ने बस पढ़ा है। आई नो कुछ लोगों ने पढ़ा है। शुरू में मुझे कंफ्यूजन हुई, सर इसी कोर्स में पढ़ा है। नो सर, नॉट इन दिस बैच। नो सर, इन दिस बैच कोर्स में एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी डन। कुछ लोगों ने बैच बाद में ज्वाइन किया है क्या? देखो, कुछ लोगों ने बैच बाद में ज्वाइन किया होगा और वो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने फाउंडेशन का जो क्लास उनको बोला गया होगा, उन्होंने किया होगा नहीं। ठीक है, उन्होंने बाकी की क्लास पढ़ी नहीं है, ब्रिज कोर्स उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, और फिर जो है वो सीधा यहां आ गए हैं और फिर बोलेंगे सर हमें समझ ही नहीं आ रहा। बेटा, आपको नहीं समझ आएगा, आपने जो फाउंडेशन है वो कवर ही नहीं किया है। ठीक है, चलो भाई, मैं ये मान लेता हूं नहीं पढ़ा है। लेट मी कंसिडर यू हैवंट स्टडी। मैं इस चीज पर क्यों ही जाऊं कि कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि किसी ने पढ़ा है। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लीव इट, लीव दिस टॉपिक, जस्ट मूव ऑन टू दी आर टॉपिक। ठीक है, मैंने क्या बताया कि केवल यूफ्रेट्स रिवर थी जो इन दोनों को यहां से अलग करती थी। यूफ्रेट्स रिवर के अलग हो जाने की वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। रोमन एम्पायर मैंने आपको मैप में दिखाया बहुत ही डिटेल से। ये मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर फैला हुआ था। ये स्पेन से लेकर सीरिया तक फैला हुआ था। ठीक है, जहां पर रोम कंट्रोल करता था सराउंडिंग रीजन के पास, नदन एंड सदर्न डायरेक्शन में। जो बाउंड्रीज थी वो राइन नदी से लेकर डेन्यूब रिवर, राइन और डेन्यूब रिवर जो नॉर्थ में थी, और साउथ में सहारा डेजर्ट तक फैला हुआ था। जबकि ईरान का इन्फ्लुएंस आप देखो तो कैस्पियन सी तक ईस्टर्न एरिया में था, और ओकेशनली ये अफगानिस्तान का भी पोर्शन कवर करते थे। तो अगर मैं रोमन एम्पायर का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन आपको बताना चाहूं तो, ठीक है, रोमन एम्पायर की ज्योग्राफी अगर मैं बताना चाहूं, ज्योग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की मैं आपको ज्योग्राफी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो, हाँ, तो आप इसको ऐसे समझो, रोमन एम्पायर की ज्योग्राफी ऐसे समझो। यहां पर ये स्पेन से, ईस्ट में ये स्पेन में थे, और वेस्ट में ये सीरिया तक थे। नॉर्थ में ये राइन और डेन्यूब रिवर, यूरोप की दो नदियां हैं बेटा, ये राइन एंड डेन्यूब, राइन एंड डेन्यूब रिवर, और साउथ में सहारा डेजर्ट, क्योंकि ये अफ्रीका में आ जाते हैं। ठीक है, और बीच में बेटा यहां पर इनकी कैपिटल हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं रोम। रोम इनकी कैपिटल थी, जहां से ये खुद को गवर्न करते थे। तो ये तो देखो इनकी ज्योग्राफी हो गई बच्चा। ठीक है, ये इनकी ज्योग्राफी देखिए। ठीक है, नाउ आई डोंट केयर बेटा कौन कहां से कैसे है। आई एम जस्ट फीलिंग कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं एकदम फ्रेशर बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द ज्योग्राफी। स्पेन से सीरिया, नॉर्थ में, ठीक है, राइन एंड डेन्यूब रिवर से साउथ में सहारा डेजर्ट। ये पूरी ज्योग्राफी हो गई। जबकि देखो वो जो है कैस्पियन सीएन जो है पूरा ईरान वाला जो एरिया था वो पर्शियन एम्पायर का हुआ करता था। मुझे ये बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं? रोमन एम्पायर का जो ईरानियन कनेक्शन है वो समझ में आया? प्लीज टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट बेटा, कि क्या आपको ये रोमन एम्पायर का ईरानियन कनेक्शन समझ में आया? रोमन एम्पायर का ईरानियन कनेक्शन समझ में आया बेटा?
मुझे फटाफट बताओ, ये रोमन एम्पायर का ईरानियन कनेक्शन समझ में आया क्या? दोनों पड़ोसी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, खाली यूफ्रेट रिवर से अलग होते थे। रोमन एम्पायर की ज्योग्राफी भी मैंने आपको बता दी। रोमन एम्पायर कहां से कहां तक फैला हुआ था। रोमन एम्पायर कैसे बना मैंने आपको बताया। रोमन एम्पायर का ईरान के साथ यानी कि पार्थेन एम्पायर के साथ जो कनेक्शन था वो भी मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया कि रोमन एम्पायर की जो ज्योग्राफी थी वो ईस्ट में सीरिया, वेस्ट में स्पेन, नॉर्थ में राइन एंड डेन्यूब रिवर और साउथ में सहारा डेजर्ट तक थी। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी जब मैंने आपको ये भी बता दिया ना, नाउ मूव ऑन। अभी आप देखो, दोनों पावरफुल थे और काफी अच्छी तरीके से ये जो है अर्ली एम्पायर्स। रोमन एम्पायर को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट फेजेस में, ठीक है। दो एम्पायर्स हैं जिनको आप दो डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब रोमन एम्पायर का ये जो पूरा समय है ना, आप इसको दो हिस्सों में बांटिए। टू फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर, टू फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर। टू फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बेटा दो फेजेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। रोमन एम्पायर को आप दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। आइए हम रोमन एम्पायर को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। For the purpose of the understanding, we are dividing Roman Empire in two phases. In two phases. ठीक है? And these are two phases. पहला फेज शुरू होता है 27 BCE में। पहला फेज बेटा शुरू होता है 27 BCE में। 27 BCE से ये 476 AD तक चलता है। 476 AD तक चलता है। 476 से AD से जब ये दूसरा फेज शुरू होता है तो ये चलता है 1453 AD तक। ये जो पहला फेज था इसकी कैपिटल थी रोम। पहले फेज की रोम कैपिटल थी। रोम कैपिटल थी, जबकि दूसरे फेज की जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल आज का क्या है बेटा? टुडेज इस्तांबुल इन टर्की। टुडेज इस्तांबुल इन टर्की। आज का जो टर्की देश है ना, उसका जो इस्तांबुल शहर है, उसका जो इस्तांबुल शहर है, इस्तांबुल उसकी कैपिटल नहीं है बेटा। कैपिटल तो उसकी अंकारा है। जैसे हमारी कैपिटल दिल्ली है लेकिन मुंबई एक बड़ा शहर है तो उनका मुंबई मान लो। टर्की का जो मुंबई है ना वो इस्तांबुल है। इस्तांबुल को पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था और इस सेकंड फेज में उनकी कैपिटल हुआ करती थी ये। अब ये कहानी जो है ना, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये डिवीजन वाली कहानी मैं आपको समझाता हूं। हाउ दिस स्टोरी गोज, हाउ दिस स्टोरी गोज। अब इस चीज को आप यहां पर समझो, ठीक है। मैं यहां पर आपको बताता हूं। ठीक है, डिवीजन इन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो डिवीजन है बेटा, जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस मैप। हैव अ लुक ऑन दिस मैप। This is not the complete orientation. हाँ,
ये देखो बेटा, ये मैप देखो, ठीक है, ये मैप देखो। रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। रोमन एम्पायर वॉज अ बिग एम्पायर। फिर रोमन एम्पायर की जो कैपिटल हुआ करती थी वो यहां पर थी, और वो जो कैपिटल थी वो थी रोम। रोम वॉज द कैपिटल। रोम में बेटा एक राजा आए जिनका नाम था किंग कॉन्स्टेंट, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। जो राजा आए उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। बेटा कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक राजा आए। जो कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक राजा आए, उन्होंने क्या महसूस किया कि रोमन एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा है। तो इन्होंने 330 बीसीई में 330 बीसीई में बोला कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ा है, तो मैं एक नया शहर बना रहा हूं ताकि मैं बाकी के रोम को अच्छे से मैनेज कर सकूं, ठीक है। यहां पर आप देखो बेटा, तो इन्होंने अपने नाम से यहां पर एक शहर बनाया। ये जो आज का टर्की है ना बेटा, आज के टर्की में उन्होंने यहां पर एक शहर बनाया, और इस शहर का नाम, चूंकि उनका अपना खुद का नाम कॉन्स्टेंटाइन था, तो उन्होंने इस शहर का नाम अपने नाम के ऊपर कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। जैसे मेरा नाम देवेंद्र है और मैं एक शहर बनाऊं और उसका नाम देवेंद्रनोपल रख दूं, समझ रहे हो ना बेटा। जैसे मेरा नाम देवेंद्र है और मैं एक शहर बनाता हूं और उस शहर का नाम देवेंद्रनोपल रख देता हूं, बिल्कुल वैसे ही राजा का नाम कॉन्स्टेंटाइन था, तो उन्होंने एक शहर बनाया और उस शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। और ये जो नया शहर जो है बनाया गया कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का, उसे बाद में जो है एक सेकेंडरी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। तो 330 बीसीई में एक नई कैपिटल बनती है जो आज के टर्की के इस्तांबुल शहर में बनी, उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो, मैं पूरे एम्पायर को दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक हिस्सा कहा जाएगा वेस्टर्न रोमन एम्पायर और वो गवर्न किया जाएगा रोम से, और जो दूसरा हिस्सा है उसे कहा जाएगा ईस्टर्न रोमन एम्पायर और उसे गवर्न किया जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल से। उन्होंने कहा कि हम इस एम्पायर को, यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर को, बाइजेंटीन एम्पायर भी बुलाएंगे, क्योंकि यहां पर बाइजेंटीन एरिया है। तो उन्होंने कहा कि हम इस एरिया को बाइजेंटीन एम्पायर भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय से 330 एडी से यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इट विल नॉट बी बीसीई, इट विल बी एडी। तो यहां पर आप देखो तो 330 एडी की बात हो रही है, 330 एडी की बात हो रही है बेटा। 330 एडी में यह फैसला किया गया कि यह पूरा एम्पायर दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा रोम से गवर्न किया जाएगा, दूसरा हिस्सा जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि आज के टर्की से गवर्न किया जाएगा। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन सी दिस थिंग हियर। अब आप यहां पर एक चीज समझो बच्चा, अब आप यहां पर एक चीज समझो कि रोम के दो टुकड़े हो गए, बट ये दोनों गवर्न कहां से होते थे, प्राइमरी कैपिटल रोम थी, लेकिन इनके ऊपर अक्सर नॉर्थ से जर्मन ट्राइब्स का हमला होता था। जर्मन ट्राइब्स, जर्मनी की जो ट्राइब थी जिनको गोथ भी कहा जाता था, ये लोग अक्सर यहां पर हमला किया करते थे। जर्मन ट्राइब्स कह लो या फिर गोथ कह लो, जर्मन ट्राइब्स या फिर गोथ्स नॉर्थ से हमला करती थी। नॉर्थ से हमला करने की वजह से जो जर्मन ट्राइब्स यानी कि गोथ्स, ये डिक्लाइन कर गए, ये डिक्लाइन कर गए, लेकिन ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था ये फ्लरिश करता रहा। तो देखो, ये तो डिक्लाइन कर गए लेकिन ये फ्लरिश करते रहे, और फिर वही समय आया जो हम लोग यहां पर देख रहे थे, वो दौर था 476 एडी का। 476 एडी में क्या हुआ कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था ये कोलैप्स कर गया, ये खत्म हो गया, और ये कई सारे छोटे छोटे देशों में तब्दील हो गया। लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो खत्म नहीं हुआ, वो फ्लरिश होता रहा, और नई कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ये पूरा एरिया बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से फ्लरिश होता रहा। एक समय तो टाइम फ्रेम में ऐसा भी आया कि कॉन्स्टेंटाइन में रूल करने वाले राजा ने यहां रोम के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। रोम जो कभी प्राइमरी कैपिटल हुआ करती थी वो सेकेंडरी कैपिटल बन गई। तो ये जो रोम का डिवीजन हुआ, रोमन एम्पायर का जो डिवीजन हुआ राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय में 330 एडी में, क्या आपको यह समझ में आया बेटा? मुझे बताओ फटाफट, प्लीज टेल मी फास्ट, प्लीज टेल मी फास्ट।
कि क्या आपको यह मसला समझ में आया कि किस तरीके से रोम के दो फेजेस बने। 330 BCE के 330 AD के बाद जो रोमन एम्पायर दो टुकड़ों में बटा, उसे राजा कॉन्स्टेंटाइन ने बांटा था और उन्हें अपने नाम पर एक शहर बनाया था, कॉन्स्टेंटिनोपल। यस यस यस, क्लियर, अंडरस्टूड, ऑलराइट। पश्चिम को भी समझ में आ गया, भव्या को भी समझ में आ गया, ठीक है। स्वाति, समीर, विश्वजीत, प्रकृति, साहिल, सबको समझ में आ गया। नितिन, मानवी, त्रिनाथ, दिव्या, पामिला, स्निग्धा, रितिका, सबको समझ में आ गया है, ऑलराइट। वैष्णवी, आयुष, ज्योति, अनीता, ठीक है। नाउ अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे ये एम्पायर जो है ये दो टुकड़ों में बटा। अब जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ना, मैं उसी चीज को ब्रीफली वहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जो चीज मैंने यहां पर लिखी है मैं बिल्कुल ब्रीफली उसे अपनी टाइमलाइन पर एक्सप्लेन कर देता हूं, आप इसे यहां पर मार्क कर लो, ठीक है। यहां पर आप क्या देख रहे हो, आप इस टाइम फ्रेम में आओ बेटा। 312 AD में किंग कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। 313 AD में किंग कॉन्स्टेंटाइन declared Christianity as state religion। ध्यान देना, यूरोप में इसी के बाद से ज्यादातर लोग क्रिश्चियन होने लगे। 313 AD में यही राजा थे कॉन्स्टेंटाइन जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को बोला कि क्रिश्चियनिटी ही हमारा स्टेट रिलीजन होगा, और क्राइस्ट के मैसेजेस को बहुत ही तेजी से स्प्रेड आउट किया जाने लगा। इन्होंने ही बेटा आगे चल के 330 AD में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का शहर बसाया। 330 AD एम्परर और किंग कॉन्स्टेंटाइन founded a new city, जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपल। इन टुडेज इस्तांबुल, और ये जगह आज का इस्तांबुल है, और इस्तांबुल आज के टर्की में है। वो खुद को टर्कीये बुलाते हैं वैसे, चल आज के टर्की में है। और ये बन गई कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर भी बुलाया जाता है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर भी बुलाया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव सीन दिस थिंग हियर। तो आपको पता चला कि 330 BC 330 AD में यह हुआ। तो कॉन्स्टेंटिनोपल यहां पर एक सेकेंडरी कैपिटल के तौर पर एग्जिस्टेंस में आई, एक सेकेंडरी कैपिटल बनी। आपने क्या देखा, यहां पर एक सेकेंडरी कैपिटल बनी, एक सेकेंडरी कैपिटल 330 AD में बनी। बाद में यही सेकेंडरी कैपिटल डोमिनेट कर जाती है सेकेंड फेज में। दिव्या कहती हैं कि ये लार्जेस्ट और वेल्थिएस्ट सिटी हुआ करती थी यूरोप की उस समय। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाउ अब आप यहां पर समझो बेटा, चक्कर छोड़ो ना, जो पढ़ा रहा हूं शांति से पढ़ो। क्या यहां पे बैच 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 कर रखा है? बोला मैंने कि अब जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एंड यू नो नथिंग। मैं बेसिक्स बता रहा हूं बेटा, एकदम एकदम बेसिक्स, ठीक है। तो दिमाग का ढक्कन खोलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ 313 से 330 AD, 330 AD में आपने देखा कि ये एक कैपिटल बनती है। फिर हमने क्या देखा कि बहुत सारे
यहां पर 476 एडी में क्या होता है? डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर, डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर यहां पर बट गया। रोमन एम्पायर जो यहां पर बटा वो दो हिस्सों में बटा, वेस्टर्न, खैर वेस्टर्न ईस्टर्न तो हो ही गया था। आप ये कह सकते हो कि रोमन एम्पायर यहां पर जो एक एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। आप यहां पर ये कहो ज्यादा बेहतर होगा कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंडेड। वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंडेड। यहां पर वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर यहां पर 476 एडी में खत्म हो गया, और जो बचा वो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, तो यहां पर जो बचा वो क्या था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और यहां पर था वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि खत्म हो गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर यहां पर था जो कि खत्म हो गया। ठीक है, नाउ ठीक है, समझ गए? चलो, इतना समझ में आ गया? फटाफट बताओ, इतना समझ आ गया? इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? इज इट डन? ठीक है, तो अभी जो आपने ये देखा, पढ़ा और समझा, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं इन अ फ्यू स्टेप्स। ये जो कहानी आपको समझ में आई है ना, इसमें कुछ एक और बातें हम फटाफट यहां पर समझते हैं, क्लियर करते हैं, और आपको यहां पर कुछ चीजें और भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? हां, देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने देखा कि रोमन एम्पायर ग्रेजुअली इतना बड़ा हो गया कि ये कई सारे डिपेंडेंट किंगडम्स में बट गया। डिपेंडेंट किंगडम का मतलब ये था कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ा बन चुका था, तो यहां पर कई सारे प्रोविंसेस बट गए। अब वो तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना कि बहुत सारे प्रोविंसेस तो यहां बट ही जाएंगे। हमने क्या देखा कि जो अर्ली सेकेंड सेंचुरी थी, वहां पर कई सारे राजा थे जिन्होंने यूफ्रेट्स रिवर के आसपास तक का एरिया रोम में एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ राजा जो थे वो बहुत ही ज्यादा वेल्दी रहे और उन्होंने कुछ आसपास के एरियाज को कब्जे में लिया। इसी समय में देखो, हेरोड का किंगडम कब्जे में लिया गया। इसी फेज में हेरोड्स का किंगडम जो है कब्जे में लिया गया, जो बहुत ही रिच किंगडम था। और हेरोड का जो किंगडम था वो आज का इजराइल और फिलिस्तीन वाला एरिया है। ठीक है,
हेरोड्स किंगडम वॉज कैप्चर्ड इन दिस फेज। यहीं पर कहीं पर ऐड कर लेना, यहीं पर ऐसे लिख लेना, हेरोड्स किंगडम वॉज कैप्चर्ड इन दिस फेज। हेरोड्स किंगडम captured in this phase. Very rich, very wealthy. हेरोड का जो किंगडम है वो आज के फिलिस्तीन और इजराइल वाले एरिया में हुआ करता था। इसी फेज में हेरोड का एम्पायर यहां पर कब्जाया गया। राजा हेरोड ने इस एम्पायर की शुरुआत की थी, और जब हेरोड राजा के इस एम्पायर को यानी कि हेरोड्स किंगडम को इन रोमन एम्पायर्स ने अपने कब्जे में लिया तो इनको मिला अथाह पैसा, और उस पैसे से इस समय के जो राजा लोग थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। तो हेरोड्स किंगडम के आ जाने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा रिच हो गए इस फेज में। अब वो जो उनका एम्पायर था वो 5.4 मिलियन दिनार का रेवेन्यू इनको दिया करता था। उस समय जो रोमन्स थे वो एक सिक्का यूज किया करते थे जो 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर का बनाया जाता था। ठीक है, हमने देखा कि पावर डायनेमिक्स बदलने लगे। पावर डायनेमिक्स के बदलने का मतलब यह था कि जल्दी ही इटली की बजाय जो प्रोविंसेस थे वहां के मेंबर्स डोमिनेट करने लगे, और वहां के जो मेंबर्स ने डोमिनेट करना शुरू किया, पहले चूंकि रोम सेंटर था तो सारा कुछ रोम से ही गवर्न किया जाता था, लेकिन जल्दी ही कहानी बदल गई। और जो कहानी बदली उसमें क्या हुआ, मतलब अब जो सारे लोग सीनेट में रोम से ही आया करते थे, क्योंकि रोमन एम्पायर इसका नाम था, बाकी जो एरियाज कब्जे में लिए गए थे वहां के लोगों को भी सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई। ये मान लिया गया कि वहां के लोग भी रोम के निवासी हैं, और उसके बाद वो भी सीनेटर बनने का हक रखने लगे। तो धीमे धीमे बाहर के लोग सीनेट में आने लगे, और जब बाहर के लोग सीनेट में आए ना तो मामला बहुत ही तेजी से बिगड़ गया और पावर डायनेमिक्स तेजी से चेंज हुआ। हमने क्या देखा कि शुरू में जो इटली यानी कि रोम के लोग थे उनका डोमिनेशन यहां हुआ करता था, लेकिन जल्दी ही जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, क्योंकि रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, जैसे भारत में 28 राज्य हैं वैसे रोमन एम्पायर कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वहां के लोग धीमे धीमे यहां पर आने लगे और आके वो मिलिट्री कमांडर्स की पोजीशन अवेल करने लगे। यहां पर बेटा एक एम्परर आए जिनका नाम था एम्परर गैलिनियस। ठीक है, जो एम्परर गैलियनस थे, गैलियनस, ठीक है, एम्परर गैलियनस, ये सीनेटर्स को मिलिट्री कमांड से एक्सक्लूड कर देते हैं, और इसीलिए प्रोविंसेस के एलिट्स का एक दौर शुरू हुआ। तो देखो हम यहां पे एम्परर गैलियनस का जिक्र कर सकते हैं, वी कैन मेंशन एम्परर गैलियनस हियर। ठीक है, यहां पर आप मेंशन कर लो एम्परर गैलियनस। excluded senators from military position, फ्रॉम मिलिट्री पोजीशन। तो गैलियनस ने मिलिट्री पोजीशन से इनको हटा दिया, तो अब नए लोग मिलिट्री पोजीशन पे आने लगे। तो जो सीनेटर्स हुआ करते थे जो कि इटली यानी कि रोम के हुआ करते थे, उनका दबदबा रोम में कम। इस फेज में शुरुआत में तो इटली के नोबल्स का दबदबा बहुत ज्यादा था, लेकिन ग्रेजुअली सीनेटर्स का दबदबा कम हुआ, क्योंकि कह दिया गया कि ये मिलिट्री पोजीशन में रहेंगे ये जरूरी नहीं है, और ये काम करने वाले एम्परर गैलियनस हुआ करते थे। तो एम्परर गैलियनस ने ये काम किया कि इनको मिलिट्री पोजीशन से हटा दिया गया। तो ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि वहां पर एक प्रोविंशियल फ्रेमवर्क डेवलप होता है, और जो प्रोविंशियल फ्रेमवर्क डेवलप होता है, प्रिंसिपलिटीज का सिस्टम आता है, वो हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन फिर धीमे धीमे ये एम्पायर कमजोर हुआ, और दो मेजर रीजंस की वजह से ये एम्पायर यहां पे कोलैप्स कर गया। और कोलैप्स करने की अगर आप रीजंस की बात करेंगे तो दो रीजंस यहां पर नोटवर्दी होंगे। एक होगा इंटरनल स्ट्राइफ। इंटरनल स्ट्राइफ से मेरा मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से है, और अटैक ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स, अटैक ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। और जो जर्मनिक ट्राइब्स थी उनके अटैक की वजह से भी, जर्मनिक ट्राइब्स के अटैक की वजह से भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपको रोमन एम्पायर का फाउंडेशन कैसे हुआ, कैसे रोमन एम्पायर बना, ये बताया। मैंने आपको बताया कि जो रोमन एम्पायर है वो कैसे दो टुकड़ों में टूटा, और मैंने रोमन एम्पायर का जो ज्योग्राफी वगैरह है वो सब भी समझा दिया है। कल मैं आपको रोमन एम्पायर का पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी बताऊंगा।
तो कल जब मैं आपको रोमन एम्पायर की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको एकदम ब्रीफली जो मंगोलियन एम्पायर है उसके बारे में भी बता दूंगा, और आपका ये जो चैप्टर है रोमन एम्पायर वाला वो यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो आज के सेशन को मैं यहां पर एंड करना चाहूंगा ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं पर रुकेगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।